Hi everyone, I hope all of you are safe and sound. I'm so sorry for being late. I was not well actually, so that is why. But now I'm up with this new video. This is the last video of the chapter. Okay, and with this video, the chapter is finished. At the end of this video, now I'll now discuss all the important questions. Okay, and back questions I'll discuss, और उससे I'll say important questions क्या क्या है, so that it will be easier for you people to to prepare for the examinations. Okay, so with no further delay, I'll start with the chapter very quickly. Okay, so yeah, here it is. Modifications of leaf in xerophytic plants like cacti and opuntia. I don't know the exact pronunciation of this particular word, opuntia. So yeah, please do check it out कि इसका क्या pronunciation है. So I'll resume. The leaves are modified into spines. Spines in the sense what? Spines मतलब होता है this काटा ऐसा होता है ना, काटा types, spines, very sharp and all that. Yeah, so spines रहते हैं बहुत सारे leaves में. leaves कैसे plants के leaves? xerophytic plants के जो भी leaves होते हैं, ठीक है. और कौन से plants xerophytic होते हैं? cacti और opuntia. और भी examples होते हैं, these two examples are given. Okay, and why are there spines? There is always a reason behind everything, everything. So spines क्यों होता है? Spines होते हैं यहाँ पे 3 चीज़ों के लिए. क्या क्या 3 चीज़ है? To check the loss of water, to conserve water and for the protection of plant. Check the loss of water क्यों? ताकि ये spines help करता है जानने के लिए कि कितना water loss हुआ है, ठीक है. स्पाइन्स होते हैं ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, ताकि ज़्यादा वाटर जो भी है वो प्लांट से इवेपोरेट नहीं हो जाए. और थर्डली इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट्स, एंड सो दैट पीपल डोंट कट डाउन. स्टिल पीपल डू कट इट, बट स्टिल रीज़न क्या है कि अगर कोई छुए तो उसको लग जाए. सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन, एंड ऐसा पता है एक एनिमल भी है प्रोक्यूपाइन. सो उसके भी बॉडी पे ऐसे स्पाइन्स निकले हुए हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अदर एनिमल्स, फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स, सो दैट उसका लाइफ सेफ रहे उस वजह से. तो वैसे ही सेम प्लांट के साथ भी है, कैक्टस एंड ओपिंशिया. सो ये लोग के भी मतलब लीव्स में ऐसे स्पाइन्स हैं, सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स मे बी. ओके, and so we'll read further. In sweet pea and garden pea, the leaves are modified into thin coiled thread like structures called tendrils. अब क्या होता है ये जो है ना, तो इसमें क्या है, ये ऐसे हुआ और फिर ऐसे हुआ और फिर नीचे ऊपर जाके कुछ सपोर्ट ले लेगा, सो एज टू क्लाइम, वो हो सकता है. तो ये क्यों होता है? सो दैट इट कैन हेल्प द प्लांट to climb. Okay, it can help the plant to climb. तो बहुत important है, इसका भी reason है tendrils क्यों होते हैं, so that it can help the plant to climb or in climbing. समझ में आ रहा है? अब हम लोग थर्ड पॉइंट रीड करेंगे. थर्ड पॉइंट पे क्या है? An onion, the scale leaves store food material and become fleshy. जो scales है, जो scale leaves है, उसमें क्या है, फूड मटेरियल स्टोर किया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ विच द अनियन इनसाइड इज़ वेरी फ्लैशी काइंड ऑफ. ये वाला दिया हुआ है, तो अंदर जो फ्लैशी लीव्स है, ये किसकी वजह से? बिकॉज द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द अनियन लीव्स. मेनी पीपल से ऑनियन, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन. ओके, आई नो दैट यू पीपल ऑलरेडी नो, just that I'm just letting you know, refreshing. ठीक है, ये भी हो गया. अब फोर्थ पॉइंट हम लोग रीड करेंगे. फोर्थ पॉइंट में क्या है? In some plants, the leaves are modified to trap insects to meet the nitrogen demand. Again, why? इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब give reasons में आ सकता है that why are such plants modified in such a manner so as to trap insects.
So why is it like that? It is like that because of the nitrogen demand. Nitrogen demand, many people, not many people, many plants need nitrogen for their survival. Okay, so because of which the certain plants are modified in such a way so that they can trap insects, and from which they can have nitrogen, they can complete their demand of nitrogen gas. ठीक है, and such plants are known as insectivorous. We'll also go through with the examples like pitcher plant, Drosera, Venus flytrap. Venus flytrap is very famous and very popular example, so it's very important to learn this. And please take care of the spellings. There is no chance कि गलत स्पेलिंग लिख दिया फिर भी मार्क्स मिल गया बायो में, स्पेलिंग रॉन्ग है एंड पूरा मार्क्स चला जाएगा. देयर इज़ नो गुंजाइश इन ऑल दिस, स्पेशली बायो में तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग्स एंड ऑल. एंड इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड टू मीट द नाइट्रोजन नीड. तो आप देखेंगे एक चीज़, हम लोग ने 4 पॉइंट पढ़ा. ओके, सो आई जस्ट रिकॉल जस्ट वंस अगेन. 4 पॉइंट पे क्या है? पहला पॉइंट पे है ज़ेरोफाइटिक प्लांट. स्पाइंस क्यों होता है? 3 चीज़ के लिए होता है, टू चेक, टू कंजर्व एंड टू प्रोटेक्ट. स्वीट पी, इसमें टेंडल्स क्यों होते हैं? फॉर टू हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग. थर्ड, अनियन में स्केल लीव्स में इतने फ्लैशी क्यों होते हैं? बिकॉज फूड मटेरियल इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन इट. एंड इन द 4th पॉइंट इट इज़ गिवन that why some plants are modified to trap insects. Why is it like that? It is like that because they secure their need of nitrogen gas. ठीक है, तो इससे भी रीज़न है. एंड एवरी पॉइंट 4 चीज़ है. पहले में ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, दूसरे में क्या है? स्वीट पी, टेंडल्स वाला चीज़, एंड तीसरे में अनियन, चौथे में इंसेक्टिवायरस वाला प्लांट्स. तो पहले वाले में क्या एग्जांपल था? कैक्टी. दूसरे वाले में क्या एग्जांपल है? टेंडल्स वाले में स्वीट पी. तीसरे वाले में क्या एग्जांपल है? अनियन. एंड चौथे वाले में क्या एग्जांपल है? 4 एग्जांपल्स, ड्रॉसेरा, पिचर प्लांट, वेनिस फ्लाइट्रैप एंड ब्लैडरवॉर्थ. ठीक है, डन. विल सी दिस डायग्राम वंस. ठीक है, देखो, लीफ टिप मॉडिफाइड टू इनटू द लिड ऑफ द पिक्चर. ये ऐसे करके बन गया, पिक्चर जैसा हो गया. इसमें इंसेक्ट्स आएगा एंड इट विल गो डाउन एंड देन दिस विल गेट क्लोज्ड. ठीक है, ये वाला क्या है? बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी लीव्स है. वाई? बिकॉज फूड स्टोर्ड इन द अनियन. ठीक है, तो ये वाला एक चीज़ है. देन विल मूव फर्दर, विल रीड दीज 2. Drosera plants has tentacles to capture edible prey. These are very tentacles so that the insects are captured. The insects get captured over here, and this is a kind of leaf. इसमें insects आता है और फिर ये जल्दी से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. तो insects get trapped and they get the nitrogen in return. Venus flytrap, the leaf blade is divided into 2 parts. Midrib acts as a hinge and left leaf edges developed long pointed hair. These are long pointed hair. This when an insect is caught, the leaf suddenly closes and prevents the insect from escaping. जब इंसेक्ट अंदर आता है ये सडनली क्लोज हो जाता है और फिर इंसेक्ट को बाहर नहीं जाने देता है. एज ए रिजल्ट ये अंदर ही इंसेक्ट रह जाता है और इससे इसको क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन. ठीक है, डन. यस, अंडरस्टैंडिंग. आई नो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग क्वाइट वेल. थैंक यू. वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली बाय रूट, स्टेम, लीफ गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके रूट के ही मदद से या फिर स्टेम की ही मदद से या फिर लीफ की ही मदद से वो प्लांट ग्रो हो जाता है वापस. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी होता है प्लांट्स का वो इसमें मदद नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, एंड देयरफॉर सीड्स कोई प्रोड्यूस नहीं होता है. जो भी प्लांट्स रूट, स्टेम
या लीफ से जन्म ले लेता है, उसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। वाई? बिकॉज इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूज़ नहीं हो रहे प्लांट्स के, और ऐसे को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अंडरस्टैंडिंग। इसके एग्जांपल्स रीड करेंगे। ब्रायोफिलम बिजोनिया कैन बी प्रोपागेटेड बाय लीव्स। ब्रायोफिलम इज वेरी फेमस एग्जांपल, डू चेक केयरफुली विद द स्पेलिंग, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ ईजियर, रैपिड एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो इट्स वेरी ईजियर, ऑब्वियसली खाली लीफ से ही प्लांट उग सकता है, स्टेम से ही उग सकता है, सो इट्स वेरी ईजी। सीडलेस प्लांट्स कैन बी रेज्ड। ऐसा प्लांट जिसमें सीड नहीं चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड्स आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट शो नो वेरिएशंस। एकदम आइडेंटिकल कॉपी रहता है, मतलब हूबहू वैसा का वैसे रहता है और कोई वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। और plants like banana, sugarcane, sweet potato, jasmine do not produce viable seeds. Such plants can be easily grown by this method. जो इन सारे प्लांट्स में क्या होता है? सीड नहीं होता, और इन सारे प्लांट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाले मेथड से ग्रो कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। सो प्लीज़ सी, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। बर्ड्स प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल नॉचेस अलोंग द मार्जिन। नॉचेस मतलब ये वाला चीज़ हो गया, अलोंग द मार्जिन मतलब ये मार्जिन हो गया। इसमें जो भी ये प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड्स बोलते हैं, बड्स। ये कौन सा लीफ है? लीफ है ये ब्रायोफिलम। इसमें केपेबल है कि ये लीफ से ही एक नया प्लांट उग जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। Here comes the end of the chapter. We have completed this chapter successfully in a week or so. And here I'll discuss the important questions. Which of the following is a modified leaf? Tell me. बताओ. Shall not answer this question. ठीक है, ये आप तो खुद से ढूंढना. Veins are present in leaves. लीव्स में मैंने बताया था, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, उसको वेनेशन बोलते हैं। द फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ, फ्लैट पोर्शन ऑफ द लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैमिना, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, प्रोटेक्ट द प्लांट, एंकर द प्लांट, डिस्ट्रीब्यूट फूड इन द प्लांट, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। क्योंकि लीफ में क्या रहता है? क्या रहता है लीफ में? टेल मी। क्लोरोफिल रहता है ना, दैट ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से खाना बन जाता है, ठीक है। इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. लीव्स आर green as they contain chlorophyll. In pitcher plant, dash are modified for trapping insects. Leaves are modified for trapping insects. Number 4, in shoot system, leaves give rise from dash on the stem. बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा? इन शूट सिस्टम, ये पहले आपको दिया हुआ है. दिस यू पीपल विल आंसर. एनी डाउट्स डू रीच आउट. आई विल ऑलवेज बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है. प्लांट सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सर्फेस आर कॉल्ड स्टोमेटा. ब्रायोफिल्म शोज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीव्स. ठीक है. डिफाइन क्या करना है? लीव विनेशन, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट, जो भी था, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट. ठीक है. और सॉरी, इन अ स्टेम. ठीक है. विच इम्पार्ट्स ग्रीन कलर ऑन द लीव? chlorophyll. Name the following: a plant with no leaf, a plant with variegated leaf. These are not important. A plant in which the leaves are reduced to spines, cacti. Two plants in which the leaves are modified into tendrils, garden pea. और क्या था? गार्डन पी एंड स्वीट पी. यस. और उसके बाद क्या है? 3 plants having reticulate venation in the leaves. This you will figure out. पहले है दिया हुआ. 3 plants having parallel venation, reticulate venation is very important. You can check it out in the third video में दिया हुआ है ये वाला चीज़. ठीक है. I'll show you once again. Just a sec. I'll show you. No worries.
सी रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है मैंगो, रोज एंड पीपल. पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल है बनाना, व्हीट एंड palms. ओके, एंड हियर और क्या क्वेश्चंस हैं? गिव डिफरेंसेस बिटवीन द सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन. ये सारा है. राइट 3 फंक्शंस ऑफ द लीव्स. फंक्शंस क्या है लीव्स का? फोटोसिंथेसिस, प्लांट का खाना बनाने में काम आता है, और प्लांट को सांस लेने में मदद करता है. रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है ना. वाई नो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बिकॉज इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है सीड का, ये रूट, स्टेम या फिर लीफ से ही ग्रो हो जाता है. वाई आर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन प्रिकली पियर. तो एक और एग्जांपल मिल गया स्पाइन्स का. क्यों रहता है? हम लोगों ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ा था, राइट. टू check, conserve and to protect the plant from insects or whatever. ठीक है. So here comes the end of the chapter. I hope you people liked the video, liked the way I explained the chapter. I hope you people will support me further. I'll be up with a new video every week and in every 2 to 3 days. So thank you so much. It means a lot. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई ट्राई माई बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो एंड मुझे बताओ कि हाउ कैन आई इम्प्रूव. और ये वीडियोस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आई एम देयर. एंड जो क्वेश्चंस मैंने लीव किया है वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप आउट. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यू कैन ऑलवेज आस्क मी. थैंक यू. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस का लिंक शेयर कर दूँगी, पार्ट 1, 2 एंड 3. सो प्लीज़ डू गो एंड वॉच इट, बिकॉज अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना. सो थैंक यू. बी सेफ, स्टे वेल. थैंक यू. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.